घूमते घूमते थोड़ी भूख लग गई थी तो यहाँ मैकडोनल्ड पे आया हूँ और यहाँ ऑर्डर किया है। नंबर है मेरा 2175। तो फिलेटो फ़िश मील मैंने जो है वो ऑर्डर किया है जो कि 235 SRD का है। मैकडोनल्ड सेट अपना ले लिया है, अभी बैठ के खाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। मैकडोनल्ड खा के बाहर आ गए हैं। थोड़ी देर पहले मैंने अमर भाई को फ़ोन किया था कि मुझे उसके साथ कहीं जाना है, तो वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी उनसे जाके मैं मिलता हूँ और थोड़ा बताते हैं उसके साथ बैठ के कि हम कहाँ जा रहे हैं आज। ये यहाँ पर बहुत सारे पाशा कैसीनोज़ हैं और ये पाशा होटल है, ज़बरदस्त होटल है। वैसे इत्तेफाक से मैं तो यहाँ कभी होटलों में ठहरा नहीं। हाँ, कल रिसोर्ट वगैरह गए थे देखने के लिए, थोड़ा घूमने के लिए, वहाँ पे वीकेंड गुजारा। तो यहाँ का होटलों की प्राइसेस का कोई आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि मैं तो जब भी आता हूँ तो फैमिली के साथ ठहरता हूँ। ये यहाँ पर टैक्सी स्टैंड है और अमर भाई यहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। देखता हूँ उनको कहाँ खड़े हैं। अमर भाई साहब अभी तक नहीं आए, शायद 2-4 मिनट में आ जाएंगे। कह रहे थे कि वो 5 मिनट में आ जाएंगे, तो अभी उसका थोड़ा इंतज़ार करते हैं, वो यहाँ पर ही आएंगे। अमर भाई आ गए तो उनके साथ बैठते हैं और देखते हैं कि वो आज कहाँ लेके जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया है कि वो कहाँ लेके जा रहे हैं। अमर भाई के साथ एक और भी पैसेंजर बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया है, तो इसको रास्ते पे उतारना है, तो थोड़ा उनसे भी बात करते हैं। हाय मैन, यू ओके? Yes, I'm okay. I'm happy. I'm happy. What's your name? My name is Roberto. Roberto. From which country you are? I'm from Brazil. Brazil. Are you living in Suriname now, or you No, are? no, I just live in Guyana. You live in Guyana. No, Guyana. Guyana, São Juan do Marroni, not close to Albina. close to Albina. French Yes. French guy. French Guyana. Guyana. French, Yes, French, French. yes. Okay. So how long you are here in Suriname? Well, I came here in 2012, okay? But I have a small boy, he studied in São Juan do Marroni. Because Okay. the education there is better than here. So you are with family here. No, my family is still over there too. Your family is still in Brazil. No, no, it's still in English, French Guyana. Yes, Guyana. Okay. So you are working here? Sometimes, not to go for when the opportunities appear, I can come. Okay. So To work. especially what you are doing? With mineral prospection. Construction work. Yeah, mineral prospection. No, gold. Gold prospection. जंगल में सोना निकालते हैं. Okay. ओके, तो ये जो ब्राज़ील के भाई साहब हैं ये जंगल से सोना निकालते हैं। ओके। Now he is going French Guyana, back where he lives. So he will take Albina taxi. Okay. Albina like छोटा बस ऐसे है, तो वो लोग एक एक सीट पर पैसे लेते हैं, तो वो जाते हैं अल्बिना. ओके। From Albina he go to French Guyana. So you will take taxi now from Paramaribo to Albina. How much it charge per person? No, depends on, because I'm not going to Albina, but I need to go to station over there where they have a van transport van. Okay? The van. Over there. Yeah, bus. It's a bus. Bus. So you don't know exactly how much they charge. No, they cost around 20 euro one person. Okay? One person 20 euro. But if you go alone, you pay 100 for transportation. Okay. You If you are alone in the bus, then you pay 100 euro. yes, but if I want to go, just, But you are paying seat by seat. yes, just 20. Nice to meet you. Me too. Okay. What's your name? My name is Nasir. Nasir. Where are you from? I'm originally from Pakistan. Oh, Pakistan. I live in England Good. and I came for holidays to Suriname. Yes, I have friends in England too. Okay. I had a Pakistan friend in Brazil. He Okay. was, I don't know for how long time I didn't see him. He was a teacher. Okay. Geophysical teacher for I learned with him. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you, Mr.
ब्राज़ीलियन गाय को यहाँ उतार दिया है। वो यहाँ से अपनी बस लेगा, इंडिविजुअल हैं तो कारें ही, लेकिन ये बस कहते हैं। 4 लोगों को बिठा के अल्बीना ले जाते हैं और पर पर्सन पैसे ले लेते हैं। तो इसी तरह अगर ये इंडिविजुअल जाएगा तो इसे 100 यूरो देना पड़ेगा। तो ठीक है, इसी तरह 20 यूरो में सब लोगों को ले जाते हैं ये अल्बीना बॉर्डर पर, और वहाँ से फिर ये लोग बोट लेके तो फ्रेंच गुयाना चले जाते हैं। लोग हैं वो आते हैं यहाँ सूरीनाम में, जी तो यहाँ पर आके थोड़ा बस जाते हैं, तो यहाँ पर जाकर वो जंगलों में सोना निकालते हैं। ओके। सोना निकालते हैं तो कोई यहाँ रहता है, कोई वापस चला जाता है पैसा बनाकर। लेकिन इस बिजनेस में उसमें वो लोग को बड़ा फ़ायदा होता है। कितने ब्राज़ीलियन आकर यहाँ होटल बनाया, घर खरीदा, सब उसमें बहुत फ़ायदा है ना। वो इस काम में जो सोना खोदता है बहुत पैसा है। यहाँ पर वो लोग अपना पासपोर्ट ब्राज़ीलियन रख लेता है ब्राज़ीलियन लोग। हाँ, ब्राज़ीलियन लोग वो यहाँ सिर्फ परमानेंट स्टे से रहते हैं, फिर वापस चला जाते हैं अपने देश। क्योंकि अगर वो लोग 60 बरस के हो गया, वहाँ के पेंशन थोड़ा मजबूत है, अच्छे से पेंशन मिलता है वहाँ पर। हाँ, पेंशन अच्छा है, तो इसीलिए वो लोग यहाँ के पासपोर्ट नहीं लेते। शायद बहुत कम लोग होगा, मोस्टली सब अपना पासपोर्ट बचा के रखता है, फिर वापस 60 बरस से होने से पहले वापस चला जाता है, तो वहाँ पेंशन पाते हैं। लेकिन जो यहाँ है, जो धनवान है, बड़ा कार उसको बेचने से तो वो लोग नहीं जाते हैं, फिर वकेशन से जाके घूम फिर के फिर चला आते हैं, फिर वो यहीं रह जाते हैं। हाँ, यहीं रह जाते हैं। सोना खोदने में बहुत एक्सपीरियंस है, सूरीनाम लोगों को बहुत कम एक्सपीरियंस है। कभी कभी वो लोग, वो जो काले लोग हैं जंगल में, उसका प्रॉपर्टी हायर कर लेते हैं, तो काम करते हैं, सोना निकाल के उसके पैसा भरते हैं, ऐसे ऐसे चलता है। इस सामने एक बहुत बड़ी मस्जिद और कल्चरल सेंटर भी है। हाँ। तो अभी आप बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, आज का प्लान क्या है? ये सूरीनाम मुस्लिम एसोसिएशन, ये इस तरफ, ये मैंने अभी बताया कि बड़ी मस्जिद और एक कल्चरल सेंटर भी है, और ये मुस्लिम एसोसिएशन भी है इधर, ये वाली, ये मुस्लिम एसोसिएशन है, बहुत बड़ा मॉस्क है ये। मुस्लिम एसोसिएशन, SMA, ओके। इंग्लिश में ये, डच में कहते हैं SMA, इंग्लिश में SMA, सूरीनाम मुस्लिम एसोसिएशन। तो आप बताएंगे कि आज का प्लान क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं एक जगह है जहाँ पहले मेरे बाप दादा लोग हिंदुस्तान से आया था, तो वहाँ बसा था। अच्छा, वहाँ बसा था, वो उस अपना ज़िंदगी में मरते दम तक वहाँ लोग वो बसे, काम किए, उससे वहाँ पर खेती बाड़ी करके तो उससे अपना ज़िंदगी चलाया। उसके बाद जब लड़का हो गया, बड़का हो गया, तो सब वहाँ से कोई शहर चला गया, कोई और देश चला गया। लेकिन वो प्रॉपर्टी अभी रहेगा, लेकिन अब मतलब जंगल हो गया, अब सब वहाँ छोड़ के चला गया, तो और जगह बस गए, तो इसीलिए वहाँ वो जगह अब खाली है, लेकिन अब जंगल हो गया। तो जो बच्चे के बच्चे हो गए, तो वो लोग कोई दूसरा देश चला गया, कोई शहर में आ गया, कोई दूसरा जगह खरीद लिया रहने को, मतलब अपना घर बना के दूसरा जगह, वहाँ से सब ज़्यादा लोग सब लोग वहाँ से मूव आउट हो गए। तो आप लोग भी वहाँ से छोड़ के आ गए? हाँ, बिल्कुल, वहाँ से छोड़ के चला गया। वो डिस्ट्रिक्ट जो वहाँ जो पहले हम लोग रहते थे, तो एक गांव था, तब उस जगह का नाम क्या था? उस जगह का नाम, उसको हम लोग हिंदुस्तानी में बोलते हैं धमैसा बोईती। धमैसा बोईती, लेकिन कागज पे डच में वो उसका नाम है क्विकलुसरेफ। ओके। हाँ। तो अभी आपका जो एक भाई का सिर्फ फैमिली उधर रहता है? हाँ। तो बाकी सब लोग मूव हो गए, तो सब पारामारिबो में है या और जगहों पे भी चले गए हैं? और जगह भी चले गए हैं। पारामारिबो से दूर भी है, और लगभग पारामारिबो के नज़दीक, मतलब वो गांव छोड़ के सब चला गया दूसरा गांव। ओके। हाँ, कोई वहाँ से दूर चला गया, कोई वहाँ गांव के नज़दीक अरे दूसरा गांव ले लिया। अभी जिस घर में आप हैं, तो वो आपने अपना खुद से बनाया है या वो रेंट का है? वो मेरे पत्नी की, मेरे बीवी की माँ बाप के है, वो लोग गुजर गए,
तो अब क्या होगा, फैमिली प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा, अब वो फैमिली प्रॉपर्टी है हाँ, आपकी, तो तो ये- आप वहाँ पर रहते हैं? हम वो मेरे बीवी के मतलब फैमिली प्रॉपर्टी में रहते हैं। आपके साथ फैमिली के कोई और लोग तो नहीं रहते, या सिर्फ नहीं। आप और आपकी फैमिली रहते हैं? मैं और मेरी बीवी और मेरे एक बेटी, हम लोग 3 रहते हैं। तो अब वहाँ पे अब आपके घर में कोई जो जगह छोड़ा हुआ है आपने, वहाँ पर कुछ आपका कोई पुराना घर, कोई चीज़ है उधर? एक छोटा सा घर था ईटा का, तो वो सब लोग जब छोड़ के चला गया तो उसको वहाँ के मतलब चोर लोग वो उसका जो टीन है उसको चुरा लिया, घर तोड़ दिया, मतलब कोई वहाँ नहीं रहते थे, तोड़ फाड़ किया, जो वो ले जा सके ले गया। तो थोड़ा सा ईटा बचा है जहाँ वो घर था। और एक 2 घर था, एक में मेरा बाप रहता था वो ईटा वाला में, और उसके ऑपोजिट वो वहाँ मेरा दादा मेरे बाप के बाप लोग रहते थे, लेकिन वो घर टोंगा का था। तो वो घर सब वो टूर को तो उसको वो ना दूसरा जगह घर बनाया था, क्योंकि वहाँ अब रास्ता ठीक नहीं था, तो ढेर लोग वहाँ से मूव होके चला गया जहाँ पत्थर वाला रास्ता है। तो इसलिए वो सब वहाँ वो जगह वो गांव वहाँ से सब लोग छोड़ के चला गया। तो वहाँ एक छोटा सा मतलब कुआं है जो हाथ से सब खोद कर उसको जमीन में उसको गाड़ा, तो गाड़ के वो जो कुआं, वेल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, पानी निकालने के लिए? पानी निकालने के लिए। तो जब मेरे बाप के बाप दादा लोग जब वहाँ आया रहने के लिए, तब से वो कुआं बनाया, तो उसी पानी से वो लोग वहाँ पर अपना जिंदगी चलाया। ओके, तो उसी पानी को वो यूज करते थे कपड़ा धोने के लिए, पानी पीने के लिए, खाने पीने के लिए, सब उसी जगह से यूज करते हाँ, थे पहले। तो वो कुआं अब भी मौजूद है उधर? अभी मौजूद है। हाँ, उसे भी देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और ये जो आप बता रहे हैं सारी चीज़ें देखते हैं। अच्छा, वो जगह जहाँ हम लोग अब जा रहे हैं, अब जंगल हो गया, लेकिन वहाँ पहले लोग गाय गोरू पोसते थे, चावल लगाते थे, और जीने के लिए मतलब खाने के लिए सब्जी लगाते थे, और इसी तरह ज़िंदगी चलता था। और लेकिन वो बड़ा खेत था वहाँ, पहले सब लोग धान की खेती करते थे, धान लगाते थे। लेकिन क्या हो गया, कुछ लोग वो खेत बेच दिया, दूसरों भाई ने खरीद लिया, तो उसको खेत साफ करके और बेच दिया, लोगों को बेच दिया। तो लोगों जो छोटा ज़मीन खरीद के, तो अब वहाँ ढेर सारे घर बन गए। लेकिन अभी वो बाकी जो मेरा बाप दादा के था वो जंगल अभी है। तो जो आपके बाप दादा वाला ज़मीन है उधर, जिसको आप कहते हैं थोड़ा जंगल हो गया है, हाँ। तो वो आपका अभी तक है, आपके नाम पे है, आप लोग बेच सकते हैं उसे? वो लोग बेच सकते हैं जो चाहे, लेकिन वो बेचना नहीं चाहते हैं। वो अपने लड़कों के लिए छोड़ दिया कि शायद कभी घर बना कर रह सके। जो आपका शेयर है उसमें, जो आपका हिस्सा है अभी है, ओके, लेकिन जो शेयर हमारा है तो हमारा फैमिली प्रॉपर्टी है, तो हम अकेले उसमें जाकर बना कर रह सकते, लेकिन बेच नहीं सकते। लेकिन क्योंकि वो अब हमारा बाप गुजर गया और माँ भी गुजर गया, अब फैमिली प्रॉपर्टी हो गया, बंटवारा नहीं हो पाया। जो जगह हम देखने आए हैं वहाँ पर हम पहुँच गए हैं। तो अमर भाई, अब यहाँ से जाना है हमने? नहीं, यहाँ पर से हम उतर के अब वो खेत को जाएंगे देखने को। यहाँ एक सड़क था, लेकिन जंगल के कारण अब सड़क बंद हो गया, अब दूर नहीं जा सकते, क्योंकि अब पेड़ हो गया, जंगल हो गया, तो उसमें जाने के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। शायद तो पैदल जा सकते हैं? पैदल जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है सांप या ये कांटा वगैरह हो सकते हैं। इस तरफ देखो, जो भाई मेरे बाप के भाई जो लिया खेत, तो उसने साफ किया इस तरफ, लेकिन इस तरफ के खेत वो जंगल हो गया, जंगल रह गया। ओके, चलो फिर चलते हैं, थोड़ा देखते हैं आगे तक। अच्छा, ओके। यहाँ एक घर था, लेकिन सब कोई जब यहाँ से चला गया, ये
मतलब एक गांव ज़मीन छोड़कर, तो उन लोग ने उसको टीन वगैरह चुरा लिया, ईटा जो थोड़ा बचा था वो चुरा लिया। तो वहाँ थोड़ा से जो ज़मीन पे ईटा है वो फंदेरे वो बचा है। तो यहाँ पर मेरा कभी मेरा छोटा भाई कभी आकर यहाँ सोता है। तो जब आपके फोर फादर्स यहाँ पे आए थे तो यहाँ इस एरिया में अब ये सारा जंगल हो गया है, जंगल तो यहाँ पर उन्होंने घर बनाया था जब, तो यहाँ उस वक्त बिजली वगैरह थी? कुछ बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, कुछ नहीं थे। तो कैसे वो लाइट का क्या अरेंजमेंट करते थे? वो घर में लाइट अपना लाइट बनाकर तो उजाला करते थे। बी केयरफुल, ये देखें जी, ये कितने तीखे वाले तेज़ वाले ये कांटों वाले लगे हुए हैं। ये रास्ते में पड़ा हुआ है, ये पता नहीं पपाया क्या किसका ये इसे वाला है। ये इससे ये पूरा कांटों से भरा हुआ है ये, और उसको थोड़ा सा ये फ्रूट लगा हुआ है, ये येलो कलर का लोग खाते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा इससे बच के जाना होगा आगे। ये ऊपर जामुन का भी पेड़ है और काफ़ी जामुन ये नीचे गिरे हुए हैं, क्योंकि कोई आता ही नहीं है यहाँ पे, पक के गिरे हुए हैं और ये ज़ाया हो जाते हैं इस तरह। हम पर भाई उस फ्रूट को मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं तोड़ने के लिए उसको। लगा लेकिन गिरा कुछ नहीं। अभी एक गिरा है। इसका नाम क्या है? ये आवारा। ओके, ये आवारा है जी। ये वो आवारा फिल्म वाला आवारा नहीं, ये फ्रूट का नाम है इधर आवारा। ये देखिए इस तरह लोग खाते हैं इसे, और मैं भी थोड़ा खा रहा हूँ इसको। ये मीठा होता है। अब गिरे वो दो गिरे, 3-4 गिर गए अब। ये सब जो जंगल है पहले एकदम साफ था। यहाँ लोग, मेरे दादा लोग वो तरकारी वगैरह लगाते थे, खाने पीने, सब्जी खेती वगैरह। और इस तरफ यहाँ जो है उस पार वहाँ एक घर था, यहाँ पर एक बड़ा घर था, लेकिन वो सब इसको टूट दिया। तो इस गांव में सिर्फ 4 घर था, 4 परिवार। एक उस तरफ। तो जब आपके बाप दादा यहाँ आए थे तो उस वक्त सिर्फ 4 घर बनाए थे इधर? नहीं, सिर्फ 2। वो पुराना घर था लंगा के, तो उसमें सब परिवार रहते थे। तो मेरा बाप जब बड़ा हो गया तो उसको जब शादी वादी हो गई तो वो छोटा सा अपने लिए बना लिया, तो उसी में रहता है। लेकिन वो भी अब टूट गया, अब नहीं रहेगा। और ये जो मेरे बाप के भाई ने उसको प्रॉपर्टी मतलब बंटवारे में पाया, तो यहाँ एक रास्ता बना दिया। तो ये जाता है जो मेन स्ट्रीट पे, वो पक्के के रास्ते हैं। ओके, उस स्ट्रीट का नाम क्या है? जो वो मेन स्ट्रीट है उसे बोलते हैं न्यू वेयर हफॉन्डन। अभी भी कुछ लोगों ने इधर गाय पोसा हुआ है ये। हाँ, गाय पोसा है। तो ये खेत सब पहले हमारे दादा लोग के थे, तो जो बेच दिया एक आध टुकड़ा ज़मीन का, तो दूसरा लोग आके छोटा घर बना लिया। ये सब हमारे दादा के खेत था। वहाँ से जो दिखते हैं ना, वो जो नया घर बन रहा है जिधर, जहाँ घर, वहाँ से लेकर यहाँ इस तरफ तो मेरा दादा के खेत था, और उस तरफ अभी। ओके, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ। इस रास्ते में बहुत सारे जामुन हैं और पके हुए हैं, बहुत सारे जामुन नीचे गिरे हुए हैं। तो मैं यहाँ से कुछ जामुन ज़रूर वापस लेके जाऊँगा और कुछ दोस्तों को खिलाऊँगा वहाँ पर। ये देखें, ये तो बिल्कुल नज़दीक में है और पके हुए हैं सारे। ये यहाँ पर ये देखें जी। हमें टूरू ये एक या तो बैग लाना होगा फिर। हाँ, बैग लाना, प्लास्टिक लाना होगा। ऐसे ना तोड़े, ये पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इससे सारे हाथ जो है वो ख़राब हो जाएंगे, वो बिल्कुल कलर हो जाएगा। मैंने अमर भाई को बोला है कि थोड़ा बाद में तोड़ेंगे किसी दिन आके, तो कह रहे थोड़ा सा तोड़ लेते हैं जो अभी तोड़ सकते हैं। जो आवारा फ्रूट अभी हमने तोड़ा है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसे अभी किसी प्लास्टिक बैग में डाल के लेके जाते हैं और फिर इसे धोकर खाएंगे।